Good morning, dear student. Our lesson number 4 of geography, agriculture is going on. Yesterday we seen about the non-food crops. Among them we seen the rubber, fiber crops. What is the meaning of sericulture, cotton and jute? So these all are the commercial crops that we seen yesterday. Today we are going to learn about the technology and institutional reforms. So that you have to take out page number 42 in your workbook. Agriculture has been practiced in India for the thousands of years. Sustained use of the land without compatible techno-institutional changes have hindered the space of the agriculture development. From the beginning, the agriculture business started in the very beginning. Means every human need the food, shelter and water. So that the first agriculture business was developed. And today also 75% people are doing agriculture business, but they are doing in the दे आर नॉट डूइंग इन टेक्निकली वे. मीन्स जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उस हिसाब से वो उतने डेवलप होके एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं. दे आर यूजिंग द प्रायर मेथड्स. मीन्स जो जो भी ओल्ड मेथड्स है उसको अप्लाई करके एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं. तो वाई हैज़ इंडिया नॉट इम्प्रूव इन द टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर. तो इंडिया जो है वो यूएसए से क्यों पीछे है इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर? Why USA is in the number 1 now in the business of agriculture? Some causes are there that we are going to discuss. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in a large part of the country still depend upon monsoon, natural fertility in order to carry on their agriculture. Means, in the field of agriculture there are the various changes and various development took place. But in nowadays also the farmers are using जो पारंपरिक मेथड है, मीन्स जो चलती आ रही है वही मेथड का एप्लीकेशन कर रहे हैं. तो एग्रीकल्चर नीड्स अ सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. एग्रीकल्चर जो है उसके लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल जो न्यू टेक्नोलॉजी है एंड न्यू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से वो होना बहुत ज़रूरी है. मीन्स इफ वी एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चर बिजनेस गिव्स अस द मोर प्रोडक्शन, है ना. तो दैट वी हैव टू यूज़. देन कलेक्टिवलाइजेशंस मीन्स सब कंबाइन होके एग्रीकल्चर का बिजनेस करना है. देन कंसिडिएशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंसिडिएशन? Consolidation means consolidation of the holdings. It means the suppose this is the land and here is the two part of that land. This land is belongs to A farmer and this land is belongs to B farmer. Here also this land is belongs to A farmer and this land is belongs to B farmer. Means A also had A farmer having the two pieces of the land and B also having the two pieces of the land. In such situation what they did, तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी लैंड. सपोज बी यहाँ पे आ जाता है और ए यहाँ पे चला जाता है. इसको हम बोलते हैं कंसोलिडिएशन ऑफ द होल्डिंग्स. तो कलेक्टिवलाइजेशन, consolidations of the holdings and cooperation and the abolition of zamindari etc. were given priority to bring reforms in the country after independence. Means इन सभी ने क्या चाहा है कि रिवॉल्वेशन के बाद या तो फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या आना चाहिए, एक न्यू टेक्नोलॉजी आना चाहिए फार्मिंग में. क्योंकि फार्मिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि अभी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है ना. और पॉपुलेशन जितने बढ़ेंगी उतने फूड क्रॉप्स की भी हमें नीड होंगी. सो दैट जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को क्या कर सके, फूड को इतने सारी पॉपुलेशन के लिए फूड
फूड को सप्लाई कर सके। और कुछ तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मीन्स वन कंट्री टू अनदर एक्सचेंज करते हैं। देन हम कुछ क्रॉप्स जो है वो लेते हैं किसी कंट्री से, है ना। कुछ क्रॉप जो है हम वो उनको देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो सम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो दैट टेक्निकल चेंजेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ land focus was the main focus of the first 5 year plan. Means after the independence, the 5 years plan was there made, and in that 5 year plan, what was focus, the main focus was the कि लैंड और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो बिजनेस है उस पर फर्स्ट फोकस किया गया था। राइट ऑफ द इनहेरिटेंस हैड लेड टू अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। मीन्स इनहेरिटेंस जो लैंड है, राइट ऑफ द इनहेरिटेंस हैड लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। Then law of the land reforms were enacted, but law of the implementation were lacking. Means बहुत सारे जो न्यू आइडियोलॉजी है, न्यू टेक्निक्स है, उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का प्लान बनाया गया, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर का प्लान बनाया गया, बट उसका एप्लीकेशन एट दैट लेवल तक नहीं हुआ, सो दैट इट वॉज फेल्यूर। नाउ व्हाट वेयर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon the introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s। मीन्स गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने 1916 और 70 में बहुत सारे न्यू चेंजेस लाए इन द एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन based on use of the package technology, and white revolution were some of the strategy initiated to improve the Indian agriculture। तो green revolution means use of the pesticide, new types of the seeds they introduced। मीन्स गवर्नमेंट ने नए सीड्स इंट्रोड्यूस करवाए, न्यू टाइप्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स यूज करवाए फॉर द फार्मर्स। आफ्टर दैट वी कैन सी द वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, उसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, to be seen here the green revolution and the package technology. It means the white revolution also introduced during after the independence, but this led to the concentration of the development in few selected areas। Means only in few areas this technology was work, and in few areas this was not work proper way, so that it was not in a great success। Therefore, in the 1980s and 1990s, the Comprehensive Land Development Program was initiated, which include both institutional and technical reform, provision for crops insurance agents against calamities, establishment of Grameen banks, then cooperative societies, and bank of the providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some steps taken। तो by the government some steps has been taken after that devaluation। तो some they given to the farmers through that cooperative societies, and through some banks, and through some the एजेंसीज। मीन्स जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है किसी ईयर, जैसे कि कभी फ्लड आता है या कभी सूखा गिर जाता है, तो इन सब सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर्स पे जो भी डेप्थ रहता है, मीन्स बैंक का जो भी लोन रहता है, उसको माफ़ कर देती है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने
किसको प्रोवाइड की, फार्मर्स को प्रोवाइड की, और मैक्सिमम फैसिलिटी जिसके पास कम लैंड है उनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की. दिस वाज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, देन अदर स्टेप्स टेकन, और कौन से स्टेप्स ली गई हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the benefit of the farmers. Means Kisan Credit Card, it means KCCC. That KCC किसान क्रेडिट कार्ड्स बनवाए गए. देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी बनवाई गई. देन आर सम ऑफ द अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए. मोवर ओवर स्पेशल वेदर bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television. मीन्स कब क्या होने वाला है, और मीन्स कौन सी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, या कब बारिश आने वाली है, या क्या होने वाला है, ये सब पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग और बुलेटिन्स गवर्नमेंट ने टीवी पे देना या रेडियो पे देना स्टार्ट किया, क्योंकि फार्मर्स जो है वो अवेयर हो जाए. ओके, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स. Then the government also announced the minimum support price and the remunerative and procurement price for the important crops to check the exploitation of farmers by speculators and the middlemen. Means sometimes क्या होता है, अगर फार्मर जो भी उसका प्रोडक्शन होता है वो बेचने के लिए जाता है मंडी में बोलो या फिर होलसेलर के पास, तो उसको कम दाम देता है. बट अब गवर्नमेंट क्या करता है, एक फिक्स दाम में फार्मर से ख़रीदता है और बाद में वो जो प्रोडक्ट है वो जो होलसेलर है उनके पास जाता है. इट मीन्स गवर्नमेंट ने एक अच्छा दाम देना स्टार्ट किया, किसको, फार्मर्स को. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे दिख रहा है किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं. ओके, ये सब गवर्नमेंट ने किया है. देन भूदान, ग्रामदान. तो ये भूदान मीन्स क्या है और ग्रामदान मीन्स क्या है, तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेयर. मीन्स महात्मा गांधी के बाद कौन आए हैं, विनोबा भावे, जिन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो किया. तो he also participate in satyagraha as one of the foremost satyagrahis. He supported Gandhi's concept of ग्राम स्वराज्य. जो गांधी जी की कंसेप्ट थी ग्राम स्वराज्य, उसको विनोबा भावे ने क्या किया, सपोर्ट किया. आफ्टर द गांधी जी martyrdom, विनोबा भावे undertook the पदयात्रा टू स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू आउट द कंट्री. फिर गांधी जी के जाने के बाद जो पूर्ण स्वराज्य है, देन सत्याग्रह है, ग्राम स्वराज्य है, ये कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम विनोबा भावे ने किया. वंस व्हेन ही वाज एट द आंध्र प्रदेश, जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश में थे, तो सम लैंडलेस फार्मर्स डिमांडेड लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग. जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश में स्पीच दे रहे थे, तो एट दैट टाइम क्या हुआ, कुछ जो लैंडलेस फार्मर थे जिनके पास कुछ भी लैंड नहीं थी, तो उन्होंने विनोबा भावे से एक रिक्वेस्ट की कि एश्योर्ड देम टू टॉक. मीन्स लैंडलेस फार्मर डिमांडेड द लैंड, उन्होंने लैंड की डिमांड की फॉर देयर इकोनॉमिकल वेलबींग. मीन्स हमें कुछ बीघा जमीन लैंड दे दो कि जिस पे हम अपना लाइवलीहुड चला सके. तो ही एश्योर्ड देम, तो विनोबा भावे ने उनको एक एश्योर्ड दिया, मीन्स एक आश्वासन दिया, क्योंकि उनके पास तब लैंड नहीं थी. टू टॉक द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटुक द कोऑपरेटिव फार्मिंग. मीन्स विनोबा भावे ने उनको बोला कि वो गवर्नमेंट से कुछ लैंड उनको प्रोवाइड करेंगे. ओके, फॉर दैट दे विल गोइंग टू टॉक विद द इंडियन गवर्नमेंट. Sri Ramachandra Reddy stood up and offered 80 acres of the land to the 80 landless farmers. Means एक बहुत बड़े रिच लैंडलॉर्ड थे उसी सेम विलेज से, तो उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी. वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आई हैविंग 80 एकर्स लैंड, और उन्होंने उस 80 एकर्स लैंड को 80 लैंडलेस फार्मर के बीच बटोर दिया. ठीक है, दिस वॉज नोन एज द भूदान. मीन्स इसको भूदान कहते हैं.
लेटर ही इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ थ्रू आउट द इंडिया। फिर उसके बाद ये जो अच्छी आइडिया थी, जो एक बिग लैंडलॉर्ड ने छोटे छोटे फार्मर्स को अपनी लैंड क्या की थी, डिस्ट्रीब्यूट, ये जो आइडिया थी ये सभी ग्राम में जाके, सभी विलेजेस में जाके विनोबा भावे ने स्प्रेड अप की। तो इसको बोलते हैं भूदान। ओके, तो इसको नाम दिया गया भूदान। सम जमींदार्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूटेड विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस, दिस वॉज नोन एज द ग्रामदान। और ग्रामदान क्या हुआ फिर, जो ऐसे बड़े बड़े फिर जमींदार ने अपनी ज़मीन जो छोटे छोटे किसानों को दी तो हो गया ग्रामदान। मीन्स खेती के साथ उन्होंने अपने जो विलेजेस थे वो विलेजेस भी उन्होंने छोड़ दिए, जिसके पास मीन्स बहुत सारे विलेजेस थे, जिसके अंडर बहुत सारे विलेजेस थे, वो विलेजेस छोड़ के कुछ जमींदार इधर उधर चले गए, तो उसको बोलते हैं ग्रामदान। उन्होंने पूरे ग्राम के ग्राम मीन्स विलेज के विलेज ही दान में दे दिए कुछ फार्मर्स को। However, many landowners choose to provide some parts of their land to the poor farmers due to the fear of the Land Selling Act. This Bhudan Gramdan movement initiated by the Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution. Means that भूदान एंड ग्रामदान, एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वी कॉल द भूदान एंड ग्रामदान, या तो व्हाट इज़ द ब्लडलेस रिवॉल्वेशन। तो ब्लडलेस मीन्स यहाँ पे कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दंगे फसाद कुछ नहीं हुए हैं। तो उन्होंने अपने खुद के मर्जी से अपने जो लैंड है वो फार्मर्स के हवाले कर दिए हैं। ओके, तो दैट वी कॉल द ब्लडलेस रिवॉल्वेशन ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट अगेन till the Bhudan and Gramdan. And tomorrow we will going to learn the next topic, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Okay, till that you have to learn today. Thank you.